Welcome to Maths with Neeraj sir. We'll do today chapter number 6, exercise 6.3 for class 10th NCERT. Before going to the exercise, we are going to discuss concept of similar triangles. Two triangles are similar if their shape is same and size may be different or size may be same also. When you can see there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. When I say that these triangles are similar to each other, what I mean, triangle ABC is similar to triangle PQ and R. I mean that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. And also, the ratio of their corresponding sides are equal, means the sides are proportionate to each other, as AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. If you remember, in the case of congruent triangles, the sides used to be same, but here in similar triangles, the size is different, so the sides are proportionate to each other. So, you remember that in the congruent triangles, we have done few criterias. Here in the similar triangles also, we will do the criterias. First criteria is side, side and side. So, similarly in the congruent triangles, the sides used to be same. But in similar triangles, the sides are proportionate, means the ratio of their corresponding sides are equal to each other. Second criteria is side angle and side. Side angle and side means the angle should be included angle. कोई और एंगल इक्वल हो उसका कोई फायदा नहीं है हमें. जो दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं दो साइड्स के, तो उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही, जो दोनों साइड जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाएंगे. और तीसरा क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया. तो ये तीन क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करेंगे हम इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर. नाउ लेट अस नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर 1, which says state which pair of triangles in the given figures are ahead. So you can see, state which pair of triangles in the given figure are similar. Similarity criteria used. You, for answering the questions, write even the pair of similar triangles in the symbolic form. Here in part 1, you can see there are two triangles. Angle A of triangle ABC is equal to angle P of triangle PQR. Angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. We are not bothered about the third one. Only two angles are sufficient to prove that these two triangles are similar to each other. And how we will write in the symbolic form? Triangle ABC is similar to triangle PQR, as angle A was equal to angle P, angle B was equal to angle Q, and angle C was equal to angle R. So, in the second part, triangle ABC and PQR, angles are not given, but the length of their sides are given. So, we will check it out. Here, you can see that AB by QR is equal to BC by PR is equal to AC by PQ. So by side, side and side criteria, both these triangles are similar. So how we will write down? Triangle ABC is similar here. You can see A, B and C. 2 and 2.5 and it was 4 and 5. So triangle QRP, triangle QRP. ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जो सिमिलर ट्रायंगल का तरीका है वो वही रहना चाहिए. यहां पर ABC, AB प्रोपोर्शनेट थी QR के, BC प्रोपोर्शनेट थी
आर पी के. सो ए बी सी, तो क्यू आर पी के ही सिमिलर होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट part, that is third part. Here you can see the sides are given. This MP is half of this DE, this LP is half of this DF, and this LM is not half of EF, means their sides are not proportionate. So these two triangles are not similar to each other. Now let's move to the fourth part. You can see that angle M is equal to angle Q. MN is proportionate to PQ. ML is proportionate to QR. So by side, angle side, you can see that the angle is included between those two sides. जो दो proportionate sides हैं उनके बीच का एंगल है दोनों केसेस के अंदर. आप बड़े ध्यान से देखिए इस चीज को. तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए बाय विच क्राइटेरिया? बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. एंड वी विल राइट डाउन कि ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल. एंगल एम वॉज इक्वल टू एंगल क्यू, सो वी विल राइट क्यू फर्स्ट. क्यू. एम एन वॉज proportionate to PQ, so here it will come P and the left one is R. So triangle MNL is similar to triangle QPR. Now move to part 5. Here also you can see angle A and angle F are equal, and AB is proportionate to that's DF and BC is proportionate to that EF. But अगर यहां ध्यान से देखें, एंगल ए उन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हैं. तो यह बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि हर बार यही गड़बड़ हो जाती है बच्चों से. सो नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 6. हियर टू ऑफ द एंगल्स आर गिवन इन ट्रायंगल DEF and two of the angles in triangle PQR. अब by angle sum property we can find out angle F, that will come as 30 degree, and angle P will come as 70 degree. So you can see angle D is equal to angle P, angle E is equal to angle Q, and angle F is equal to angle R. So both these triangles are similar by angle criteria. And how we will write down? Triangle DEF is similar to, आप बताएंगे साथ में, D किसके इक्वल था? P के. वेरी गुड. E किसके इक्वल है? Q के. वेरी वेरी गुड. एंड F किसके इक्वल है यहां पर? R के. सो वेरी गुड. इट मीन्स इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. In this figure, triangle OFC is given similar to triangle OBA. जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो इसका मतलब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल O के बराबर है, एंगल F एंगल B के बराबर है और एंगल C एंगल A के बराबर है. और यहां पे हमें दे रखा है एंगल BOC 125 और एंगल CDO इज इक्वल टू 70. तो जब आपको गिवन लिखना है तो यहां तक आप गिवन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू फाइंड. जब आप टू फाइंड लिखते हैं तो हमेशा सॉल्यूशन लिखते हैं, और जब आप टू प्रूव लिखते हैं तो हमेशा प्रूफ लिखेंगे. तो यहां पर आप लिखेंगे टू फाइंड और उसका बाद लिखेंगे सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी दी सॉल्यूशन. अब नाउ सी ट्रायंगल ODC हमें गिवन था ट्रायंगल OBA के सिमिलर है. तो इसका मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जैसे यहां पर एंगल ODC 70 डिग्री दे रखा था, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? एंगल OBA. वो आपको क्या मिल गया? 70 डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अब हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगर एक एंगल मालूम है तो दूसरा सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो उसके बाद आपके पास आ गया ये 55 डिग्री. AOB 55 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. अब दो एंगल्स मालूम है तो तीसरा आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. सो यहां पर आपके पास एंगल DOC 55 वर्टिकली ऑपोजिट,
DCO 55 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड OAB आपने अभी अभी प्रूव किया वो 55 डिग्री आया है। सो ये तीनों एंगल्स जो आपको फाइंड आउट करने थे यहां से मिल गए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 6.2 में किया था बाय बीपीटी। अब यहां पर हम इसी क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उन्होंने हमें बताया था कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, जिसके अंदर AB और DC आपस में पैरेलल हैं और उनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। तो आपको प्रूव करना है OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। सो नाउ लेट्स सी। अब ये दोनों जो साइड्स अगर पैरेलल हैं आपस में तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा। सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल्स मिल गए आपको, तो इसका मतलब एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो वहीं से हमने लिखा OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। सो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिगर दे रखा है इसमें। इन दिस गिवन फिगर व्हाट दे हैव गिवन, QR by QS is equal to QT by PR. So, and angle 1 is equal to angle 2. तो यहां से लेकर के और यहां तक तो आपका हो गया गिवन, और यहां से लेकर के ये हो गया आपका टू प्रूव। अब टू प्रूव और गिवन लिख लिया तो आपको मालूम है इसके बाद आएगा प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपको मालूम होगा कि उनकी opposite sides opposite to equal angles are also equal. So PR is equal to PQ. So, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम, ये गिवन था हमें, तो हमने क्या करा, PR को रिप्लेस कर दिया PQ से। अब हमारे पास एंगल 1 दोनों में कॉमन था, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स प्रोपोर्शनेट आ गई और एक एंगल इक्वल आ गया। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? सिमिलर हो गए। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका प्रूव हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया है। S and T are points on the side PR and QR of such that कि एंगल P is equal to एंगल RTS। इस ट्रायंगल PQR के अंदर ये दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हैं और एंगल R अब ध्यान से देखें तो कॉमन है। तो आपके पास इजी हो गया। यहां तक तो आपके पास गिवन लिखा गया, ये आ गया आपके पास टू प्रूव, और प्रूफ के लिए आपको बिल्कुल सिर्फ दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, वो आपने देख ही लिया है। एंगल P और एंगल T गिवन था और एंगल R कॉमन था। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बिल्कुल इजीली सिमिलर प्रूव कर लिया आपने। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको ADE और ACD कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं। आपको याद होगा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और आपको प्रूव करना है ADE सिमिलर है ABC के। तो नाउ लेट्स सी कैसे सिमिलर हैं आपस में। अब आपको याद होगा अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT वाज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, सभी इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई आपकी, AB AC के, AE AD के इक्वल आ गई। सो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो AB बाय AD ये पूरा AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE, और एंगल A दोनों में कॉमन है। सो दो साइड्स प्रोपोर्शनेट होगी और एक एंगल इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल भी आपके पास सिमिलर आ गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनमें बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपली ध्यान से अगर आप करते रहेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास 4 चीजें प्रूव करने के लिए दी हुई हैं, तो इनमें से हम 1 या 2 आपको करके दिखाएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क। ठीक है, सो देखिए ध्यान से फिगर के अंदर आप क्वेश्चन यहां से रीड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं पहला पार्ट करता हूं। तो हमने यहां से फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रायंगल उठाया, ट्रायंगल AEP और CDP। फिगर के अंदर देखिए ध्यान से, ट्रायंगल AEP और CDP, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, और एंगल AC और AD दोनों में कॉमन है। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? बिल्कुल सिमिलर हो गए। फिगर के अंदर देखिए ध्यान से,
AEP और एंगल CDP दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन है, साफ साफ नजर आ रहा है। और जो एंगल APE है वो CPD के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और आपको मालूम है कि अगर कोई दो एंगल्स इक्वल आ जाएं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब अगला ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE। यहां पर भी दो एंगल 90 डिग्री के, और ये जो एंगल B है ये आपके पास आ गया कॉमन। यू कैन सी दिस एंगल B, ये दोनों में कॉमन है। सो ये दोनों में एंगल कॉमन आ गया, तो यहां पर भी आपके पास एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। सो यहां पर आप देखें तो ये दोनों एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर। सो थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए एज आई हैज गिवन, ट्राई योरसेल्फ, कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। E is a point on the side AD produced। यहां पर जब फिगर बनाते हैं तो छोटी सी कई बार गलती कर जाते हैं बच्चे। क्या करते हैं, वो AD की बजाय DA को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, उन्होंने कहा AD प्रोड्यूस, तो D की तरफ आगे बढ़ेंगे ना कि A की तरफ। AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अब हमें यहां पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी अपने माइंड में रखनी है। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज? कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite sides are parallel and equal, diagonals bisect each other, and one more, the sum of adjacent angles is 180 degree। so वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में रहेंगी तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब नाउ सी एंगल A is equal to एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको मालूम है दे आर इक्वल। एंगल A एंगल C के इक्वल आ गया, और जो ये एंगल E है ये एंगल CBF के इक्वल आएगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एज AE इज पैरेलल टू BC। अब दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो ऑटोमेटिकली दो एंगल्स के साथ दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।